Next, then so now we have seen one more term called as entropy. So what is entropy? When the substance changes from solid to liquid and liquid to gaseous state, the disorder in the molecule goes on increasing. And when the disorder increases, the randomness also increases, and the disorder or randomness present in the molecule is denoted by the term called as the S, and S is called as the entropy. So what is entropy? Entropy is a measure of disorder or randomness present in the molecule. And we have also seen in the last lecture, when the substance changes from solid to liquid and to gas, the disorder goes on increasing and entropy also goes on increasing, और entropy का value कैसा आएगा? Positive आएगा. Then we have also seen if the substance changes from gas to liquid and liquid to solid, the disorder state decreases. The substance will go in the order state, and so here entropy decreases and entropy will have the negative sign. Okay. Then based on this, we have seen some example. मतलब कौन से example में entropy positive रहेगा, कौन से example में entropy negative रहेगा. All this we have seen. Now here the next heading, and also we have done certain example. Correct. We have also seen in the last lecture how to measure the entropy. मतलब अगर कोई substance में disorder है, तो substance के अंदर disorder कितना है? The disorder can be measured by using what? Entropy. Okay, and entropy can be measured by which formula? Delta S is equal to Q reversible upon T. Q मतलब heat supplied to the system in a reversible manner divided by the temperature. मतलब अगर substance को हम लोग कितना heat supply करें और at what temperature we are supplying the heat, ये अगर हमें दोनों parameters अगर मालूम है तो हम लोग system का entropy calculate कर सकते हैं, मतलब entropy का value find out कर सकते हैं. Correct? So what we said here, the entropy depends upon the amount of the heat supplied at a given temperature. मतलब heat supply करते समय system का temperature कितना है उसके ऊपर entropy depend करेगा. Correct? Then we also see the entropy, the unit of the entropy. Entropy is given, see, heat is measured in which unit? Joule, and temperature is measured in which unit? Kelvin. So unit of the entropy is what? Joule per Kelvin. Unit of entropy is Joule per Kelvin. Correct. And one more point now I just want to add today here is entropy is a state function. Entropy is a state function. Now what is the meaning of the state function? Means the value of the entropy depends upon the initial state and final state. ऐसा क्यों? देखो entropy of the system, मतलब हमारे प्रोसेस का जो एंट्रोपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, एंड Q रिवर्सिबल मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय T, and heat supplied at constant pressure is called as delta H upon T, and delta H is the enthalpy, and already we know that enthalpy is a state function. Enthalpy is a state function. So enthalpy अगर state function है and entropy depends on enthalpy, therefore entropy is also state function. And what is state function? Its value depends upon the initial state and the final state. It does not depend upon the path. Correct? Entropy is a state function. Now I'm going for the next heading. That is, yes, the next heading we are having here, entropy and spontaneity. मतलब अभी हम लोग अगेन ट्राई करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, दैट वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी. देखो मतलब स्पॉन्टेनिटी हम लोग डिसाइड करने की कोशिश की थी बाय यूजिंग व्हाट? एंथैल्पी, लेकिन हम लोग नहीं कर सके. अभी हमें देखना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, कैन वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी. मतलब एंट्रोपी का वैल्यू देख के क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. तो विल टेक सम एग्जांपल. See the first example I'll say here. First example, ice melt
above 0 degree Celsius, ice melt above 0 degree Celsius, मतलब आइस अगर हम लोगों ने फ्रीजर से बाहर निकाला और अगर हमारे मतलब अगर रूम में रख दिया तो टेम्परेचर डेफिनेटली रूम का 0 डिग्री के ऊपर रहेगा, तो आइस विल अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो आइस अगर अपने आप मेल्ट हो रहा है मतलब ये प्रोसेस कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। और स्पॉन्टेनियस रहेगा मतलब आइस मतलब वाटर इज इन द विच स्टेट, सॉलिड। मेल्ट होगा मतलब वाटर इज इन द विच स्टेट, लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड मतलब डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग मतलब एंट्रोपी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब हम लोग ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अगर हमारे एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है एंट्रोपी का। आई टेक वन मोर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आई विल टेक वेपराइजेशन of water. Vaporization, what is vaporization? Converting the water from liquid state to water into gaseous state. Vaporization of water at 100 degree, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग वाटर को बॉइल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वाटर को ऑलरेडी बॉइल कर रहे हैं। और वाटर अगर बॉइल हो रहा होगा, वाटर अगर बॉइल हो रहा होगा तो अपने आप वाटर विल चेंज, water will change from the liquid state to a gaseous state, correct? And liquid मतलब यहाँ पे disorderless है, but in gaseous state the disorder is more. So disorder is increasing, randomness is increasing, and when disorder and randomness increases, the value of the delta S is going to be positive. और दूसरा, water already boil हो रहा है, water already boil हो रहा है मतलब temperature 100 degree है, so this process is going to be what? Spontaneous. Okay, तो हम लोग यहाँ से ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि if मतलब कंफर्म नहीं, if delta S is positive, correct, then reaction या हमारा जो भी प्रोसेस है, reaction or it can be process, may be spontaneous. ऐसा मतलब by looking at the example number 1 and by looking at the example number 2 we can say कि अगर हमारा इक्वेशन के लिए या हमारे प्रोसेस के लिए डेल्टा एस अगर पॉजिटिव रहेगा, ओके, देन दैट रिएक्शन और प्रोसेस मे बी गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। इसका मतलब अगर हमारा डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आई विल रिपीट अगेन कि इसका मतलब अगर हमारा डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव रहेगा then reaction is going to become what? Non-spontaneous. But we'll take one example, example number 3. Now in this example I'll take, suppose we are having here, okay, ये इसका एग्जांपल है 1,2 का H2O2 in the liquid state gives you 2H2O in the liquid state plus O2 in the gaseous state. देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर बॉटल ओपन रखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप वाटर और O2 में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड है और इधर राइट साइड में लिक्विड और गैस है, मतलब वी आर चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एंड लिक्विड टू गैस का मतलब क्या हुआ? डिसऑर्डर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो एंट्रोपी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और एंट्रोपी पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप डिकम्पोज होता है। मतलब अगर कोई हम लोग दुकान से या कोई मेडिकल शॉप से अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉटल लेके आते हो और अगर वो बॉटल 1-2 दिन के लिए अगर ओपन रखोगे तो अपने आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल कन्वर्ट इनटू वाटर। मतलब जब मेडिकल शॉप से जब लेके आए थे तो बॉटल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड था और थोड़े दिन के बाद जब बॉटल के अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। मतलब ये जो रिएक्शंस है हमारा,
डेल्टा एस पॉजिटिव है और रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय इट्स ओन, मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ spontaneous process. So from this three example number 1, melting of the ice above 0 degrees Celsius, vaporization of water at 100 degrees Celsius, or hydrogen peroxide, for all these three example, the value of the entropy is positive. And because the value of the entropy is positive, the reaction may be spontaneous. इसका मतलब हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसे बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट we'll take one more example. Now I'll just take the fourth example. Yes, the fourth example is H2 gas combined with O2 gas to gives you 2H2 in the liquid state. देखो, H2 is a hydrogen, O2 is the oxygen, and hydrogen and oxygen combined with each other to form water. और ये जो रिएक्शन है, देखो, in air, in atmosphere, अपने हवा में, अपने एयर में हाइड्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन है और एयर में मॉइस्चर भी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये रिएक्शन जो हमारा है, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ नेचुरल फिनोमेना, मतलब अपने आप हो रहा है. इन द एटमॉस्फेयर वी आर हैविंग हाइड्रोजन गैस, इन द एटमॉस्फेयर वी आर हैविंग ऑक्सीजन गैस, and they will react with each other to produce the water. अपने आप नेचुरली है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. लेकिन अगर इस रिएक्शन का एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करोगे या एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करोगे, करेक्ट, तो एंट्रोपी अगर देखोगे तो एंट्रोपी कितना आ रहा है, -327. एंड एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन. तो यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन आ गया. मतलब रिएक्शन को तो मैंने बोला कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन अपने आप हो रहा है. रिएक्शन अगर अपने आप हो रहा है, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस का वैल्यू कैसे होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस निगेटिव है. तो नाउ वी हैव, मतलब वी आर अंडर कंफ्यूजन कि फिर क्या बोले. मतलब डेल्टा एस, यहाँ पे तो मैंने बोला था कि डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस और डेल्टा एस निगेटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. डेल्टा एस का पॉजिटिव वैल्यू है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. एंड देयरफॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, cannot be decided on the value of डेल्टा एस. मतलब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो हम लोग डेल्टा एस का वैल्यू देख के नहीं बोल सकते. क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एस. मतलब एंट्रोपी का वैल्यू देख के, मतलब वैल्यू प्लस और वैल्यू माइनस देख के हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं करते. हमने दो देखा कि एंथैल्पी का वैल्यू देख के भी हम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं डिसाइड नहीं कर सकते. एंट्रोपी का वैल्यू देख के भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो नहीं देख सकते. एंट्रोपी मतलब इसे हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ, या रिएक्शन है, सिस्टम है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. ये हमारा रिएक्शन है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. ये हमारा रिएक्शन है तो इसे क्या बोलोगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. बिकॉज हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो भी पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पार्ट के ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम कहलाता है. सो दिस इज सिस्टम, करेक्ट. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी or
by knowing the value of the entropy. मतलब एंट्रोपी का वैल्यू देख के एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम देख के हम लोग स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं डिसाइड नहीं कर सकते. ओके, अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या आज के टॉपिक में? ये एग्जांपल ध्यान में रखो क्योंकि आगे हमारा टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड करेगा. डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है लेकिन तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस. ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. The next heading is second law of thermodynamics. हमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ दिखा था, मतलब देखा है. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? द लॉ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे. एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. ओके, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो दैट इज फर्स्ट लॉ. नाउ वी आर सीइंग द सेकंड लॉ. करेक्ट? सेकंड लॉ भी क्या है हमें देखना है. देखो सबसे पहले I'll take the example here, the same example जहाँ पे हमारा confusion था. 2H2 in the gaseous state plus O2 in the gaseous state gives you sorry यहाँ पे मैंने इसका बैलेंसिंग पूरा रॉन्ग लिखा था. यहाँ पे 2H2 आएगा. 2 2s are 4, 2 2s are 4, O2 O2. Okay. Okay. 2H2 plus O2. I'll just take that same example जहाँ से हमारा मतलब हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट H2 in the liquid state. और मैंने बोला था कि इस रिएक्शन के लिए उसका डेल्टा एस का वैल्यू था -327 जूल पर केल्विन. देखो एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन. एंट्रोपी का यूनिट जूल पर केल्विन. करेक्ट. और इक्वेशन बैलेंस है 2 2s are 4H O2 O2. और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी भी दिया है. इस रिएक्शन का एंथैल्पी इज -572 किलोजूल. करेक्ट. मतलब फॉर दिस रिएक्शन एंट्रोपी, मतलब ये रिएक्शन मतलब हमारा सिस्टम है. सिस्टम का एंट्रोपी है -327 और सिस्टम का एंथैल्पी है -572 किलोजूल. ओके, so this is called as entropy of the system. This is called as the enthalpy of a system. Okay, now here एक और concept है. I'll find out here entropy. I'll just first label here delta S. This delta S can be called as what? Entropy of the system. मतलब रिएक्शन के साथ जो वैल्यू दिया रहेगा उसको सिस्टम बोलता है. So entropy of the system is -327 joule per Kelvin. Joule per Kelvin. Enthalpy. So I can just label this as enthalpy of the system is -572 kilojoule. Okay, I'll just convert because ये वैल्यू मेरा जूल में है तो मैं इससे भी जूल में कन्वर्ट करूंगा. तो अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा वैल्यू? -572 into 10⁻³ joule. Because when we convert kilojoule into joule, we have to multiply by 1000. तो अभी दोनों का यूनिट सेम हुआ. यहाँ पे यूनिट है जूल पर केल्विन और यहाँ पे भी यूनिट है जूल. करेक्ट. नाउ हियर ये हमारा रिएक्शन है जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलते हैं? सिस्टम. और इस सिस्टम्स का एंट्रोपी है और इस सिस्टम का एंथैल्पी. करेक्ट. नाउ आई एम गोइंग फॉर द अदर टर्म, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. Entropy of surrounding, and the formula for the entropy of surrounding is
माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो एंट्रोपी ऑफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सिस्टम है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच अपॉन टी, करेक्ट। एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या है? देखो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो हियर माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, एंड यहाँ पे जो डेल्टा एच लिखोगे वो किससे रिलेट होगा? सिस्टम के साथ। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम? The enthalpy of the system is minus 572 kilojoule, but kilojoule we have converted into joule, multiply by 1000 10 raised to power 3. यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, फॉर्मूला का माइनस साइन है, ओके, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? 572 माइनस इनटू 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर कितना? तो यहाँ पे जो एंट्रोपी दिया है वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, यहाँ पे जो एंथैल्पी दिया वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंट्रोपी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसका मतलब होता है द रिएक्शन इज परफॉर्म एट व्हाट टेम्परेचर? 25 डिग्री। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हमारा जो रिएक्शन चल रहा है विच इज गोइंग ऑन व्हाट टेम्परेचर? 25 डिग्री, but we have to convert into Kelvin. So in the Kelvin it is going to be how much? 298 Kelvin, correct? So here I'll just divide by 298, and then this minus will become plus, and I got here 572 into 10 raised to 3 divided by 298. और अगर मैं पूरा कैलकुलेशन कर दूंगा, कंप्लीट कैलकुलेशन अगर कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1919 जूल पर केल्विन। 1919 मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिला? एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग आई गॉट। यहाँ पे मेरे पास एंट्रोपी था, लेकिन वो था एंट्रोपी जो रिएक्शन के साथ दिया हुआ है, उसे बोला एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। बाद में मैंने कैलकुलेट किया एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, एंड देन आई विल यूज वन फॉर्मूला, डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल मतलब टोटल एंट्रोपी, and total entropy is equal to which formula I can use? Entropy of the system, right, plus entropy of the surrounding. Total entropy is equal to the entropy of the system and entropy of the surrounding. What is the entropy of the system? The entropy of the system is minus 327 joules. So I'll just write here minus 327 joule plus entropy of the surrounding is 1919 जूल। दोनों जूल में मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन आई विल गेट हियर 1592, एंड द आंसर इज पॉजिटिव 1592। और एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन, करेक्ट। ये भी जूल पर केल्विन में है, ये भी जूल पर केल्विन में है। तो टोटल एंट्रोपी वी गॉट, सो हियर वी गॉट टोटल एंट्रोपी is this much. Total entropy is 1592 joule per Kelvin. Now we'll say what is the second law of thermodynamics. What is that? तो यहाँ पे अगर if total entropy is greater than 0, मतलब अगर हमारा total entropy अगर greater than 0 है, then we can say the process can be spontaneous. Okay. देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? सिस्टम का एंट्रोपी। यहाँ पे क्या देखा था? सिस्टम का एंट्रोपी। यहाँ पे भी क्या देखा था? सिस्टम का एंट्रोपी। तो सिस्टम का एंट्रोपी देख के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं हम लोग नहीं बोल सकते, बट नाउ वी कैन डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस बाय यूजिंग व्हिच एंट्रोपी? टोटल एंट्रोपी। एंड हाउ टू कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी? The total entropy is given by the formula entropy of the system plus entropy of the surrounding, correct? So spontaneity of process या system
can be decided, spontaneity of a process can be decided by using total entropy. By using what? Total entropy. Correct? और वो भी कैसे कि हमारा टोटल एंट्रोपी का वैल्यू कैसा चाहिए? ग्रेटर देन जीरो चाहिए. ग्रेटर देन जीरो चाहिए मतलब कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव. और इसका मतलब अगर डेल्टा एस टोटल, अगर टोटल हमारा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर हमारा डेल्टा एस टोटल अगर जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आएगा, देन वी कैन से हियर, yes, we can say the process is at equilibrium. मतलब अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग 2 और 3 कंसेप्ट हम लोग अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वी कैन डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. We can decide the spontaneity of the reaction by using which entropy? Total entropy. By using total entropy. कैसे? टोटल एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मतलब टोटल एंट्रोपी का वैल्यू कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. देखो यहाँ पे हमें अगर देखोगे सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव है, सराउंडिंग का एंट्रोपी पॉजिटिव है. करेक्ट? बट द टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव. टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव. तो अगर हमारा टोटल एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. टोटल एंट्रोपी अगर हमारा नेगेटिव है, रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड इफ टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम. अब इसके ऊपर बेस हमें सेंटेंस देना है, एंड दैट सेंटेंस व्हाट वी राइट हियर कैन बी कॉल्ड एज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो आई जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? I'll just take another picture. The second law of thermodynamics states that the second law of thermodynamics states that total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. See, I'll repeat here. The second law of thermodynamics states that, what is the statement? Total entropy. And how do we get total entropy? By adding the entropy of the system and by adding the entropy of the surrounding. Okay, 1 minute. Yes, so we can say second law of thermodynamics states that the total entropy और total entropy किससे बनता है? By adding the entropy of the system and by adding the entropy of the surrounding, and which should increase. मतलब उसका आंसर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. अगर टोटल एंट्रोपी का आंसर अगर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा
तो हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा. So this is the statement for second law of thermodynamics. So what is statement? The total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. So this is the statement for the second law, correct? So please read once again. The second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. And so I'll just write the continuous statement here कि अगर हमारा total entropy greater than 0 रहेगा तो हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा. अगर मेरा टोटल एंट्रोपी लेस देन 0 रहेगा तो प्रोसेस कैसे रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा. और अगर हमारा टोटल एंट्रोपी इक्वल टू 0 रहेगा, द प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम. तो ये कंसेप्ट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ओके, I'll just see here कि based on this concept do we have any numerical. Okay, so just wait for a few minutes. Yes, 1 minute. I have one question here. See here, I'll just page number 87 from textbook, numerical number 7. Yes. See, I'm showing this, sharing the sum with you all. See, they have said here, if the standard enthalpy of formation of methanol, the standard enthalpy of formation of methanol is minus 238.9 kilojoule per mole. Okay, then entropy change for the surrounding will be how much? But I'll just write down here. What is the first information they have given here? That they have said the standard enthalpy of formation of methanol is minus 238.9 किलोजूल पर मोल. देखो ना, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा. मतलब लिखना कंपलसरी नहीं, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. उन्होंने क्या बोला है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब फॉर्म करना है. क्या फॉर्म करना है हमें, मिथेनॉल फॉर्म करना है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मिथेनॉल, CH3OH. करेक्ट, वी हैव टू फॉर्म द मिथेनॉल. सो मिथेनॉल अगर मुझे फॉर्म करना है तो मिथेनॉल कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा. तो आई जस्ट राइट मिथेनॉल. Methanol normally in the which state, liquid. Methanol formation, the formation reaction जब मुझे लिखना रहेगा तो किससे फॉर्म करोगे, by using which element, carbon, hydrogen and oxygen. So I'll just write carbon. Carbon standard state is the graphite. Hydrogen standard state is a gas and oxygen standard state is a gas. ये मेरा फॉर्मेशन रिएक्शन है और मुझे कितना फॉर्म करना है, 1 मोल, बिकॉज दे हैव गिवन द वैल्यू किलोजूल पर मोल. या अगर हमें ये भी मालूम है कि कोई भी कंपाउंड अगर उन्होंने फॉर्म करने के लिए बोला है तो वी हैव टू ऑलवेज फॉर्म हाउ मेनी मोल, 1. तो यहाँ पे मुझे कंपल्सरी 1 रखना है. करेक्ट. फिर बैलेंस करो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 + 1 4 4 तो 2 एंड ऑक्सीजन 1. सो हियर आई विल राइट ये फॉर्मेशन रिएक्शन है और इस फॉर्मेशन रिएक्शन का एंथैल्पी दिया हुआ है. सो दे हैव गिवन द एंथैल्पी डेल्टा H and which enthalpy they have given, standard enthalpy they have given, which is equal to minus 238.9 किलोजूल पर मोल. ओके, ये एंथैल्पी दिया हुआ है. अभी रिएक्शन के साथ एंथैल्पी दिया हुआ है. ओके, रिएक्शन का एंथैल्पी दिया हुआ है and they have asked us the question, what is the entropy change
change for सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी कितना रहेगा वो हमें देखना है। सराउंडिंग का एंट्रोपी कितना रहेगा, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सराउंडिंग। द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज गिवन बाय विच फॉर्मूला, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, माइनस डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच, -230, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस साइन है, और डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है, -230, सॉरी -238.9। और जब हम लोग एंट्रोपी मेजर करते हैं, एंट्रोपी वी ऑलवेज मेजर इन विच यूनिट, जूल। तो यहाँ पे जो मेरा किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट करूंगा, तो -238.9 into 10⁻³ joule. Kilo joule, when we convert into joule, multiply by 10⁻³ मतलब 1000. Okay, ये joule में आ गया, तो here I'll write -238.9 into 10⁻³ joule. Temperature, now temperature they are not given, but उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो कौन सा एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। Means we are performing reaction what temperature, 25 degree, and 25 degree we have to convert into Kelvin, that is 298. So I'll just divide by 298, and so here the minus will become plus 238.9 into 10⁻³ divided by 298, और ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा। बट कौन सा आंसर मिलेगा, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। सो एनीबडी हैज अ कैलकुलेटर इन देयर हैंड और नियर बाय, प्लीज डिवाइड कैसे करो, 238.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 238.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आएगा उसे 298 से डिवाइड करो। प्लीज डू इट। Yes, 801.67. Thank you. So it is 8061 joule per Kelvin. Entropy का यूनिट हमेशा क्या होता है, joule per Kelvin. So this is the answer. Correct? Okay. Now I'll just see whether we have one more sum of the similar type. One minute. I'll just see check. Okay, यहाँ पे एक example था. Okay. Now I'll just go for the another heading. One minute, student. सम है क्या इस टाइप का? ओके ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक ही सम दिख रहा है इस टाइप का ना। I'll just go for the other topic. Yes. Now we are going for the next equation. मतलब equation हो जाएगा हमारा। The next heading is Gibbs energy. Next heading is Gibbs energy. So what is Gibbs energy? देखो, Gibbs energy is, now Gibbs is the name of the person who has given this concept
So it is called as the Gibbs energy. Now why we are going for this concept? देखो कि अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं डिसाइड करना है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल एंट्रोपी. ओके, और टोटल एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या मालूम चाहिए? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का इंफॉर्मेशन तो चाहिए प्लस मुझे और क्या मालूम चाहिए? सराउंडिंग का भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो गिब्स ने बोला कि इतना दो चीजें फाइंड आउट करने से अच्छा व्हाई कांट वी रिलाई ओनली ऑन द सिस्टम. मतलब हम लोग सिस्टम का डेटा यूज कर रहे हैं, सराउंडिंग का डेटा भी यूज कर रहे हैं, तो व्हाई कांट वी यूज द इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिलेटेड टू द सिस्टम ओनली. एंड देयरफॉर गिब्स हैज गिवन वन इक्वेशन. Okay, what is the Gibbs main concept? The Gibbs said that it is convenient to consider the criteria of spontaneity in terms of thermodynamic properties of system. करेक्ट. मतलब गिब्स ने क्या बोला कि अगर हमने देखो हम लोग टोटल एंट्रोपी से डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बट गिब्स सेड कि तुम्हें फिर सिस्टम का एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, दोनों एंट्रोपी ऐड करने पड़ेंगे फिर डिसाइड कर सकते हैं. इससे अच्छा व्हाई कांट वी यूज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली सिस्टम. मतलब हम लोग सिस्टम के प्रॉपर्टी यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. एंड फॉर दैट he has introduced a new thermodynamic property called as Gibbs energy. He has introduced new property called as what? Gibbs energy. First, a second, and he has given the Gibbs equation. Gibbs equation, and what is Gibbs equation? G equal to H minus Ts. G is equal to H minus Ts. But here we know that H stand for enthalpy, S stand for entropy, and here the one more thing, that H, T, S are all स्टेट फंक्शन. देखो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, अगर तुम ऐसे अगर नोट्स मेंटेन करोगे तुम्हें बाकी और कुछ रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं. तो H मतलब एंथैल्पी, T मतलब टेम्परेचर एंड S मतलब एंट्रोपी. ये ऑल आर विच फंक्शन? स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मतलब द वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो ये तीनों अगर स्टेट फंक्शन है तो ये तीनों से क्या बन रहा है? G गिब्स एनर्जी बन रहा है. तो अगर ये तीनों स्टेट फंक्शंस है तो गिब्स एनर्जी तो इनके ऊपर डिपेंड करे. तो गिब्स एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी व्हाट? स्टेट फंक्शन. सो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर, since H, T, S are all state function, therefore G मतलब Gibbs energy is also state function. Gibbs energy is also state function, correct? And then the Gibbs energy, but हमें मालूम है कि एंथैल्पी जब मेजर करने रहेगा तो हम लोग H नहीं मेजर करते, हम लोग क्या मेजर करते हैं? डेल्टा H करते हैं, मतलब चेंज इन द एंथैल्पी करते हैं. एंट्रोपी मेजर करना रहेगा तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? डेल्टा S मेजर करते हैं. एंड देयरफॉर अगर मुझे गिब्स एनर्जी मेजर करना है तो हाउ टू मेजर व्हाट? चेंज इन द गिब्स एनर्जी.
So here I'll write the next sentence. Change in Gibbs energy is given by the formula. And which formula for Gibbs energy we can use here? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Because देखो ऐसा क्यों देखो सेम इक्वेशन है, बट हमें मालूम है हम लोग एंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर करते. एंथैल्पी वी ऑलवेज मेजर एट व्हाट? डेल्टा H. एंट्रोपी वी ऑलवेज मेजर एट व्हाट? डेल्टा S. Because we measure change in the value, no? Because we measure the values what? State function. मतलब the value depends on initial state and difference measure करते हैं हम लोग. So delta H और delta S, तो Gibbs energy भी क्या रहेगा? State function है. मतलब Gibbs energy का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Initial state and final state के ऊपर डिपेंड करेगा, करेक्ट? So delta G is equal to delta H minus T delta. So this is called as a Gibbs equation, and in this Gibbs equation I can say delta G is called as the Gibbs energy of system, correct? Delta H is called as enthalpy of system. Delta S is called as entropy of system, and T is temperature in Kelvin, करेक्ट? सी हियर, अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे एंड डेल्टा एच का मतलब क्या हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, मतलब एंथैल्पी सिस्टम का है, करेक्ट? डेल्टा एस का मतलब क्या हो रहा है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी. इसका मतलब देखो यहाँ पे ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा रिएक्शन है, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है. मेरे पास डेल्टा एस भी अवेलेबल है, मुझे डेल्टा एच भी अवेलेबल है. मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो मुझे यहाँ पे इधर हम लोगों ने क्या किया था? वी कैलकुलेटेड द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, और फिर बाद में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ऐड करके हमें टोटल एंट्रोपी मिला था. मतलब हम लोगों ने सराउंडिंग कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे हमें सराउंडिंग, एक मिनट, यस. सो हियर इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम देखो, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो रिएक्शन, ये सिस्टम है, रिएक्शन का मतलब सिस्टम. हमारे पास सिस्टम का एंट्रोपी है, हमारे पास सिस्टम का एंथैल्पी है, तो सराउंडिंग के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है. तो सिस्टम के सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो सी हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये यहाँ पे आ जाएगा. वी कैन सब्स्टिट्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे आएगा. टेम्परेचर तो प्रोवाइड किया ही जाएगा हमें, तो डायरेक्टली वी गेट व्हाट? डेल्टा जी. और फिर हम लोग डेल्टा जी से डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. तो मतलब एंट्रोपी से भी डिसाइड कर सकते थे, लेकिन एंट्रोपी का प्रॉब्लम क्या था कि हमें दोनों एंट्रोपी मालूम होनी चाहिए, सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, सराउंडिंग के बारे में. तो गिब्स को ये प्रॉब्लमेटिक लगा कि अगर सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन तुम्हें क्यों चाहिए, व्हाई कांट वी डिसाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम. तो इसीलिए फिर गिब्स ने इक्वेशन दिया जो उसका ओरिजिनल इक्वेशन था, G इक्वल टू H माइनस TS, करेक्ट? लेकिन वही इक्वेशन को उन्हें डेल्टा जी क्यों लिखा? बिकॉज जो टर्म्स है एंथैल्पी, एंट्रोपी, उनका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते. वी ऑलवेज मेजर व्हाट? चेंज. व्हाई चेंज? बिकॉज दे ऑल आर स्टेट फंक्शन, एंड स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो ये अगर स्टेट फंक्शंस है तो गिब्स एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी अ स्टेट फंक्शन. इसलिए ये हमारे इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे डिसाइड करना है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन अभी टाइमिंग के लिए, आज के लिए तो इतना ध्यान में रखना, टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस, टोटल एंट्रोपी निगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड
टोटल एंट्रोपी अगर 0 आएगा तो इक्विलिब्रियम, ये एंट्रोपी से था. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी how to decide the spontaneity by using the value of delta G. Okay, so ये next concept रहेगा. Okay, do you have any doubt or difficulty? Yes, 21.